السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسی نیک لڑکی کی کہانی ہے جس نے ایک ایسا درد برداشت کیا جس کو برداشت کرنا کسی عام انسان کے لیے بہت مشکل ہے۔ جنوری 1947 کی ایک شدید یکبستہ صبح فجر کے وقت تھی۔ الفلاح کی آواز پر حسب معمول کوثر کی آنکھیں جھٹ سے کھل گئیں۔ ابھی اٹھتی ہوں، اس نے کروٹ بدل کر تکیہ منہ پر رکھ لیا۔ شدید ترین سردی میں اتنے سویرے بستر سے نکلنے کا تصور ہی سہانا روح ہے، مگر اذان کے کلمات نے اسے بستر سے نکلنے پر حسب معمول مجبور کر دیا۔ وہ جلدی سے دوپٹہ سر پہ لپیٹتی باہر نکلی، برآمدے کے دروازے کی کنڈی کھول کر باہر صحن میں نکل آئی۔ مسجد سے اذان کی آواز ابھی جاری تھی، اور یہ آواز کسی اور کی نہیں، اس کے ابا جی کی تھی۔ اس کے ابا محلے کی مسجد کے مؤذن تھے اور گھنٹہ بھر پہلے ہی وضو کر کے مسجد روانہ ہو چکے تھے۔ کوثر نے جلدی جلدی آستینیں چڑھائیں اور صحن میں رکھے لکڑی کے پیڑے پر بیٹھ کر وضو کرنے لگی۔ ٹھنڈے یک پانی نے جیسے اس کے ہاتھ پاؤں جما دیے۔ قدرے پڑے رکھی لکڑی کی چوکی پر طے کر کے رکھی جائے نماز کو اس نے سیدھا کیا اور اس پر نماز پڑھنے لگی۔ سردی سے اس کے باقاعدہ دانت بج رہے تھے۔ سٹور میں گندم کی بوری کی آڑ میں کئی گھنٹوں سے چھپا وجود کب سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ سیاہ کپڑے میں چھپایا ہوا تھا۔ کوثر نے نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ جائے نماز طے کر کے اس نے دوبارہ اپنے کمرے کا رخ کیا۔ امی اور دادی کے کمرے کا دروازہ ابھی بند تھا۔ سٹور کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے آہستہ سے سٹور میں جھانکا۔ ایک لمبا چوڑا وجود، تمام چہرہ سیاہ کپڑے میں چھپایا ہوا۔ کوثر کا دل خوف سے پھٹنے والا ہو گیا۔ قریب تھا کہ اس کے منہ سے چیخ نکل جاتی کہ اس شخص نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ایک ہاتھ سے مضبوطی سے کوثر کا منہ بند کیا۔ گھنٹے بعد جب کانپتی ہوئی کوثر اپنے کمرے میں واپس لوٹی تو اس کی 19 سالہ دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ نقاب پوش کب کا فرار ہو چکا تھا۔ کوثر اپنی چیخوں کو روکنے کے لیے اپنا دوپٹہ منہ میں گھسائے دے رہی تھی۔ صبح امی اور دادی اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس کو تیز بخار چڑھ گیا اور اس کی حالت گیر ہو رہی تھی۔ پھر صبح ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیا ہوگا، اس کی دادی بڑبڑا رہی تھی۔ کتنی مرتبہ کہا ہے کہ پانی گرم کر لیا کر، مگر اس لڑکی کی سستی۔ کاش میں صبح کے لیے نہ اٹھتی۔ کوثر کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ کاش اس صبح اذان کی آواز میرے کانوں میں نہ گونجی ہوتی۔ وہ نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی۔ دن پر دن گزرتے گئے، کوثر کی حالت قدرے سنبھل گئی، مگر اس صبح کے بعد وہ فجر کے لیے نہ اٹھی۔ اذان پر آنکھ تو حسب معمول کھل جاتی، مگر وہ اپنے بستر پر پڑی کانپتی رہی۔ کوثر کی حالت تو بہتر ہو رہی تھی، مگر ملک کے حالات شدید بگڑ رہے تھے، اور کوثر کے ماں باپ اور دادی بے حد خوفزدہ تھے۔ ایک تو مسلمان، پھر مسجد کے مؤذن بے حد غریب، جو گنتی کے مسلمان گھرانے تھے وہ سخت خوفزدہ تھے۔ جن گھروں میں جوان لڑکیاں تھیں ان کا خوف تو کئی گنا زیادہ تھا۔ کئی لوگوں نے اپنی کم عمر لڑکیوں کی بنا دیکھے بھالے شادیاں کر دی تھیں۔ کوثر کی ماں بھی کوثر کی جلد از جلد شادی کرنا چاہتی تھی، مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ کوثر بے حد بد شکل تھی۔ سانولی رنگت اور پھر اس پر بچپن میں نکل آنے والی چیچک نے سارا چہرہ بھر دیا تھا۔ لوگ ان کی شرافت کے قصے سن کر ان کے گھر رشتہ لے تو آتے، مگر کوثر کو دیکھ کر الٹے پاؤں لوٹ جاتے۔ کوثر کی سب سہیلیاں اپنے گھروں کی ہو گئی تھیں، اور اب تو چند مہینوں سے ملک کے حالات بگڑتے چلے جا رہے تھے۔ عورتوں نے تو گھر سے نکلنا ختم کر دیا تھا۔ کوثر اور اس کا شریف مختصر گھرانہ بھی بے حد خوفزدہ تھا۔ مرد کے نام پر گھر میں صرف کمزور مؤذن صاحب تھے اور 3 خواتین۔ کوثر کی ماں کو کوثر کی بہت فکر تھی کہ اس پر کوئی دوسری نظر تک نہیں ڈالے گا، اور اس رات والے واقعے کے بعد جو کہ کوثر کی ماں کے علم میں نہ تھا، یہ بات سچ ہی ثابت ہو گئی تھی۔ پھر 14 اگست 1947 کا دن آ گیا۔
बंटवारा हुआ वो न जाने कैसे जान बचाने में कामयाब हो गई और मुसलमानों के काफिले में शामिल होकर पाकिस्तान पहुंच गई। जख्मों से चूर दिल, थका हुआ टूटा जिस्म और वीरान आंखें लेकर कई महीनों तक तो इसको समझ न आ सकी कि ये हुआ क्या है, कौन सी क़यामत गुजर गई या अभी गुजरना बाकी है। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे तैसे हस्बे दस्तूर जिस्म के जख्म भरने लगे और दिल की भी भूख भी लगने लगी और नींद भी आने लगी। शुरू में जहाँ वो रुकी थी किसी स्कूल की इमारत थी जिसको बेसहारा मुहाजिर लड़कियों और औरतों का कैंप बनाया गया था। कौसर जिस औरत की कहानी सुनती इसको लगता सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इसने उठाई है, मगर अगली की कहानी इससे कहीं बढ़कर अज़ियतनाक होती। कई लड़कियां कंवारी थी, कई के साथ इनके बच्चे थे, सब अपनों से बिछड़ी हुई थी। बहुत सारे इस एतबार से बिल्कुल मुतमईन थे, इसके आगे पीछे कोई नहीं था, कोई गुमशुदा नहीं था। महीनों पर महीने गुजर गए, कई खुश नसीब औरतों के बिछड़े रिश्तेदार इनको आकर ले गए, कई लड़कियों के कैंप में ही रिश्ते आ गए और वो चंद कपड़ों में रुखसत हो गईं। बहुत से लोग कौसर का रिश्ता भी लेकर आए, मगर इंतहाई नेक दिल बेलौस होने के बावजूद कौसर का चेहरा देखकर चुपचाप लौट गए या कैंप की किसी और खूबसूरत लड़की को ब्याह कर ले गए। कौसर के लिए ये सूरत हाल नई नहीं थी, वो इस अज़ियत से कई मर्तबा गुजर चुकी थी। मेरी शादी नहीं हो सकती, इसने खुद को समझा लिया था। फिर एक दिन कैंप की बाजी नसीमा ने इसको अपने कमरे में बुलवाया। जी बाजी, कौसर इनके करीब जाकर बैठ गई थी। कैसी हो कौसर? फरिश्ता सिर्फ नसीमा ने प्यार से कौसर के गहरे सांवले चेहरे पर नज़र डाली। ठीक हूँ बाजी। कौसर के होंठों पर फीकी मुस्कुराहट फैल गई। कितनी उम्र हो गई है तुम्हारी बेटी? ये कोई 21 साल। कौसर ने उंगलियों पर हिसाब लगाया। तो क्या ख्याल है अब तुम्हें अपने घर का न कर दिया जाए? मगर कौसर की आंखों में कई मंजर घूम गए। जब कई रिश्ते लाने वाले इसको देखकर वापस लौट गए थे, अब ऐसा नहीं होगा। नसीमा बाजी इसके सवाल बिना सुने भांप गई थी। उन्होंने तुमको देखकर पसंद किया है। जब 14 अगस्त को हमने पाकिस्तान की सालगिरह का जश्न मनाया था और बहुत से लोग जमा हुए थे, तब तुम किसी को इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने तुम्हारा रिश्ता भेज दिया। कौसर बेहोश होने वाली थी। अपने 21 साला ज़िंदगी में वो किसी को अच्छी लगी थी, अब्बा अम्मा और दादी के अलावा, और हाँ बाजी नसीमा के अलावा। मैंने भी अच्छी तरह छानबीन कर ली है। बहुत अच्छा लड़का है, पैसे वाला है, बस तुम्हारी हाँ का इंतज़ार है। कौसर ने कुछ शर्म और कुछ हैरत से नज़रें झुका लीं। कैंप के अकब में बने भरे से मैदान में शादी का पंडाल सजा हुआ था। वैसे तो कैंप में कई मर्तबा शादी की तकरीब हो चुकी थी, मगर आज तो जैसे रंग ही अलग था, क्योंकि आज शादी का सारा इंतज़ाम कौसर के होने वाले बेहद अमीर दूल्हा की तरफ से किया गया था। मेहमानों के बैठने का शानदार इंतज़ाम और इनकी ज़ियाफ़त के लिए बेहतरीन खाना, कौसर का जोड़ा और जेवर, जो देखता कौसर की किस्मत पर रश्क करने लगता। और सबसे काबिले रश्क चीज़ तो ऐसी थी कि लड़कियां दर हकीकत हाथ काटने वाली हो गई। जी हाँ, बेहद खूबरू नौजवान आलीशान कौसर का दूल्हा किसी मर्द पर दूसरी नज़र न डालने के शरई असूल पर सख्ती से कारबंद। बाजी नसीमा की पहली नज़र इस कदर तवील हो गई कि एहसास होने पर उन्होंने घबरा कर दूल्हे से नज़र हटा ली और ज़ेरे लब माशाल्लाह कई बार दोहराया। कौसर कीमती सुर्ख जोड़े में इस कदर मामूली लग रही थी कि मेकअप करने वाली ने थक कर ठंडी सांस भरी। निकाह हुआ, छवारे बटे, रुखसती का शोर हुआ। कौसर रुखसत होकर अपने ससुराल पहुंच गई। अपने सजे सजाए कमरे में बैठकर अपने मेहंदी लगे सांवले हाथों को देखती न जाने क्या क्या सोचे जा रही थी। इसका बचपन, जवानी, सहेलियाँ, फिर वो खौफनाक सुबह। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। कौसर का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। कोई अंदर आकर ऐन इसके सामने बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम। इतनी खूबसूरत आवाज़ शायद इसने पहली मर्तबा सुनी। बेसाख्ता इसने आंखें उठा ली। उफ, ये खूबसूरत मुस्कुराता हुआ गोरा नौरानी चेहरा,
पाक आंखें, सियाह छोटी सी दाढ़ी और माथे पर गहरा सजदे का निशान। बेहतर होगा कि सबसे पहले आपसे अपना तारफ़ करवा दूं। वो बहुत प्यार से बोला, मेरा नाम उमर है, उमर फ़ारूक, मगर ये मेरा पैदाइशी नाम नहीं, मेरा पैदाइशी नाम अमर है, अमर सिंह। कौसर ने दोबारा घबरा कर आंखें उठाई। घबराए नहीं, वो जैसे इसका सवाल समझ गया। मैं अब मुसलमान हो चुका हूँ, सच्चा मुसलमान, जैसे आप हैं। मैं आपको एक कहानी बल्कि एक वाक़या सुनाता हूँ। उमर ने खनकार कर गला साफ किया। 2.5 साल पहले मुझे एक मिशन सौंपा गया, अपने मोहल्ले के तमाम अमीर घरानों में डाका डालने का मिशन। मैं रात भर एक घर में छुपा रहा, फिर नीम अंधेरे में एक बुजुर्ग कमरे से निकले। तेज़ी से उन्होंने आस्तीनें चढ़ाई और ठंडे पानी से वज़ू किया, शदीद तरीन सर्दी में, और घर से निकल गए अज़ान देने के लिए। मैं काफ़ी कोशिश के बावजूद भी इन्हें लूट ना सका। फिर अज़ान हुई, नौजवान लड़की कमरे से निकली, सख्त सर्दी में आस्तीनें चढ़ाई। जब ठंडे पानी से वज़ू करके खुदा के हजूर खड़ी हो गई, कौसर को लगा इसका दिल पसलियाँ फाड़ कर बाहर आ जाएगा। मैं इस घर में डाका डालना चाहता था, लेकिन इस लड़की को देखकर मैं छुपा रहा और इसने अपनी नमाज मुकम्मल कर ली। फिर मैं शैतान के बहकावे में आ गया और इस लड़की के साथ वो सब कुछ कर दिया जो मैं नहीं करना चाहता था। कौसर की आंखें भर गईं और इसके आंसू गिरने लगे। फिर न जाने क्या हुआ, मेरे दिल की दुनिया ही बदल गई। मैंने गुनाहों से तौबा कर ली और वो गिरोह छोड़ दिया, इसलिए कि मैं खुद मुसलमान हो गया। मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, अमर से उमर बन गया। नाम में तो बस पेश का फ़र्क है, मगर मेरी तमाम ज़िंदगी ज़ेर से ज़बर हो गई। कलमा पढ़ते ही मुझे समझ आने लगा कि ये क्या राज है। अज़ान की आवाज़ में कौन सा सहर छुपा है कि मुसलमान दिन हो या रात घर से दीवाना वार आस्तीनें चढ़ाते, वज़ू करते और खुदा के हजूर सजदा रेज़ हो जाते हैं। वो कौन सी पुकार है जो कि खुदा की तरफ से होती है और बंदा हाथ बांध कर इसके सामने हाजिर हो जाता है। उमर ने कौसर की तरफ प्यार भरी नज़र डाली। मैंने खुदा से अपनी इस गुनाह की बहुत माफ़ी मांगी। मैंने खुदा से अर्ज़ की कि अगर इसने मेरी तौबा कबूल कर ली तो तुम मुझे नज़र आ जाओ। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, फिर मुसलमान होकर मैं पाकिस्तान आ गया। खाली हाथ आया था मैं, और खुदा ने इतनी बरकत दी कि मिट्टी को हाथ लगाता तो सोना बन जाता, और आखिरकार तो मुझे मिल ही गई। यानी मेरी तौबा और मेरी दुआ खुदा ने सुन ली। खुदा ने तो माफ़ कर दिया, अब तुम क्या मुझे माफ़ करोगी? उमर ने कौसर के सामने हाथ जोड़ दिए। कौसर ने अपने आंसू में भीगे सांवले हाथ उमर के जुड़े हुए सफ़ेद हाथों के ऊपर रख दिए और उसे माफ़ कर दिया। अब उमर और कौसर दोनों ही खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में था बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें।